Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Decision Theory. Now, in the previous session, we have seen decision making under uncertainty. Now, in this section, we'll be seeing decision making under risk. So, यहाँ पे I write it is decision making under risk. So, this is the name of the method. So यहाँ पे इसके अंदर आएगा अलग अलग सिचुएशंस. So over here first we'll see थोड़ा सा theory part of it. That is, in this situation the decision maker has the knowledge of the probabilities of occurrence of each state of nature. मतलब सारे state of natures के probabilities रहेंगे based on what the past experience. These probabilities are obtained from past records or from personal judgment of decision maker. Thus, a prior distribution of probabilities along with various state of nature is known to the decision maker. It is called probability distribution. So, after this over here, I'll say here the best decision is chosen with the help of expected monetary value. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, it is क्या बोला मैंने? Expected monetary value, which is in short called as EMV. So EMV बोला अभी से, इसका मतलब होता है expected monetary value criteria. For this, the EMV is calculated for each course of action, and then the action with maximum EMV is selected as the best decision. The following steps are used. Now, I will say the first step is the payoff table with corresponding probability is either given or is calculated from the given information. मतलब कभी कभी डायरेक्टली दिया रहेगा, कभी कभी हमें वो टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा. फिर it is called conditional payoff table, giving payoffs for various courses of action and state of nature and the respective probabilities. Now, next important point is EMV is calculated for each course of action by taking sum of product of payoff and respective probabilities for all possible state of nature. This EMV is also known as expected payoff. The best course of action is one with maximum payoff. So now we'll consider question based on this. So over here we start with the next question. So यहाँ पे it is question number 8. I'll read the question. Now the payoff table is given and payoff table का value जो है I से is state. यहाँ पे पहले payoff table लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टेट ऑफ नेचर लिखेंगे, यहाँ पे वी राइट कोर्स ऑफ एक्शन. सो ओवर हियर मेरे पास है A1, A2, A3. ये है S1, S2, S3. उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मतलब ये प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज हमारे पास रहेंगे. नाउ यहाँ पे व्हाट आर द वैल्यूज फॉर दिस? तो मैं बोलता हूँ ये है 2500, उसके बाद है 2500, उसके बाद भी है 2500. मतलब यहाँ पे सारे वैल्यूज 2500 है. नेक्स्ट इट इज 4000 है, उसके बाद है 3500 एंड उसके बाद है 2000. नेक्स्ट वैल्यू जो है दैट इज 4000 है, उसके बाद जो वैल्यू है वो है 2500 और उसके बाद ये जो वैल्यू है वो है 2000. सो यहाँ पे आई हैव द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस एज 0.4, इसके लिए इट इज 0.5 एंड इसके लिए इट इज 0.1. सो ये प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज है. नाउ यहाँ पे हमने बोला है वी वांट टू ऑब्टेन द बेस्ट डिसीजन एक्शन यूजिंग EMV क्राइटेरिया. नाउ EMV क्राइटेरिया ढूंढने के लिए we need to find expected
monetary value, expected monetary value for each course of action is expected payoff for that action. So यहाँ पे how to calculate this? तो इसका कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं EMV. सो EMV लिखा और यहाँ पे मैं लिखूंगा A1. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो ये लिखेंगे एज, तो मैं ऐसा बोलूंगा दिस इंटू दिस, मतलब ये हो जाएगा 2500 इंटू 0.4 प्लस 2500 इंटू 0.5 प्लस 2500 इंटू 0.1. सो इसका आंसर, सो 2500 इंटू 0.4, सो इसका आंसर होता है 1000 प्लस 2500 इंटू 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1250 प्लस 2500 इंटू 0.1, सो इसका आंसर हो जाएगा 250. और ये सबको ऐड किया तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 प्लस 1250 प्लस 250, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500. सो ये EMV फॉर A1 हो गया. अब मैं यहाँ पे लिखता हूं EMV और इधर लिखता हूं A2. सो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 4000 इंटू 0.4 प्लस 3500 इंटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 2000 इंटू 0.1. सो यहाँ पे 4000 इंटू 0.4, इसका आंसर आ जाता है 1600 प्लस 3500 इंटू 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1750 प्लस 2000 इंटू 0.1, सो इसका आंसर आ जाएगा 200. सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा दिस बिकम्स, ये हो गया 1600 प्लस 1750 प्लस 200, सो ये हो जाएगा 3550. अब इधर लिखता हूं EMV फॉर A3. सो ये हो जाएगा 4000 इंटू 0.4 प्लस ये हो जाएगा 2500 इंटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 2000 इंटू 0.1, सो इसका आंसर आ जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा 1250 प्लस ये हो जाएगा 200. सो यहाँ पे इट इज 1600 आएगा प्लस 1250 आएगा प्लस 200 आएगा, सो ये हो गया 3050. सो यहाँ पे हमने EMV के वैल्यूज कैलकुलेट कर दिए. अब EMV के वैल्यूज जो है तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 2500, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 3550 एंड जो थर्ड वैल्यू है वो है 3050. सो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं ऐसा बोलूंगा सिंस EMV, मैं ऐसा बोलूंगा सिंस EMV, अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो कह रहे से ये जो A2 का है वो वैल्यू सबसे ज्यादा है, सो दैट बिकम्स व्हाट द बेस्ट डिसीजन मेकर. तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा सिंस EMV इज मैक्सिमम फॉर A2 with value equal to 3550. So A2 will be क्या आएगा selected. So यहाँ पे ये कंडीशन लिख दिया. So with this we end this question over here and we make a note of this question. We start with the next question, that is question number 9. For the following payoff table with corresponding probabilities, obtain the best decision using EMV criteria. payoff table दिया है
कोर्स ऑफ एक्शन दिए, स्टेट्स ऑफ नेचर। सो यहाँ पे इट इज क्वेश्चन नंबर क्या लिखूंगा 9, यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज पे ऑफ टेबल आ जाएगा, इधर आ जाएगा स्टेट ऑफ नेचर, यहाँ पे आ जाएगा कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा एक बार ये आ गया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस ये वैल्यूज हो गए तो इधर आ जाएगा S1 S2 S3, ये हो जाएगा A1 A2 A3 एंड इधर लिख दूंगा एज व्हाट द वैल्यूज ऑफ माय प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे ये वैल्यू है 150, उसके बाद 300 400, नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो है 250, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 500 -100, उसके बाद इट इज 0 270 230 एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू है इट इज 0.5 लिखूंगा 0.2 एंड 0. क्या है 3. नाउ क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड व्हाट obtain the best decision using EMV criteria. EMV. So EMV का मतलब होता है expected monetary value. Now ये EMV कैलकुलेट करने के लिए तो मैं ऐसा बोलूंगा EMV for A1 is equal to, तो ये ऐसा लिखा जाएगा it is 150 into 0.5 प्लस ये हो जाएगा 300 इंटू 0.2 प्लस ये हो जाएगा 400 इंटू 0.3. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा तो ये हो जाएगा 150 इंटू 0.5, सो ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो जाएगा अभी 300 इंटू 0.2 विच इज 60 प्लस ये हो जाएगा 400 इंटू 0.3 जो हो जाएगा 120. सो नाउ दिस वैल्यू इज 75 प्लस 60 प्लस 120 एंड इसका आंसर आ जाएगा एज 255. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट वैल्यू. अच्छा ऐसे ही मैं ढूंढूंगा EMV फॉर A2 and this value is equal to, ये हो जाएगा 250 into 0.5, फिर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 500 into 0.2 प्लस फिर हो जाएगा -100 into 0.3. सो इसका आंसर आ जाएगा एज 250 into 0.5. सो आंसर फॉर दिस इज 125 प्लस मैं ऐसा बोलूंगा इट इज 500 इंटू 0.2 तो ये हो जाएगा एज व्हाट 100. फिर यहाँ पे प्लस है बट ये माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा. इट इज 100 इंटू 0.3, मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 30. सो इट इज 125 प्लस 100 माइनस 30. सो आंसर फॉर दिस इज 195. So we start with EMV for A3. So यहाँ पे it is 0 into 0.5 हो जाएगा प्लस 270 into 0.2 हो जाएगा प्लस 230 into 0.3 हो जाएगा. So this becomes 0 प्लस अब ये आएगा 270 into 0.2 ये हो जाएगा 54 प्लस 230 into 0.3 ये हो जाएगा 69 which is equal to, अब मैं बोलूंगा 0 प्लस 54 प्लस 69 ये हो जाएगा 123. सो यहाँ पे मेरे पास EMV आ गया फॉर A1, EMV आ गया फॉर A2 एंड EMV आ गया फॉर A3. सो अब उन लोग ने क्वेश्चन दिया था obtain the best decision using EMV criteria. सो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा EMV
A1 इज इक्वल टू क्या आएगा 255। अभी ये 195 और ये 123, तो ये सबसे हाईएस्ट है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा देयरफॉर द बेस्ट डिसीजन इज टू चूज A1 with EMV equal to 255. With this question is it. We make a note of this question. We start with the next question, that is question number 10. You are given the following payoff of 3x, A1, A2, A3 and the state of nature S1, S2 and S3. So यहाँ पे this is question number 10. यहाँ पे course of action is given and यहाँ पे it is state of nature. So यहाँ पे it is A1, A2, A3 ये दिया है, यहाँ पे it is S1, S2, S3 दिया है. Now इसके पहले के सम तक हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ रहता था एंड स्टेट ऑफ नेचर हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ होता था. ठीक है, खाली उसके पोजीशंस जो है वो चेंज किए गए हैं. नाउ वैल्यूज आर 25 माइनस 10 माइनस 125. उसके बाद है 400, 440 एंड उसके बाद है 500. नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 650, 740, 750. Now after this they have mentioned the probabilities of state of nature are respectively 0.3, 0.5, 0.2. Calculate and tabulate the EMV to decide the optimum course of action. So यहाँ पे probabilities के values दिए, but जो probability के values है वो आ जाएगा as 0. उन लोगों ने वैल्यू दिया है as 0.3, फिर 0.5 है और ये है 0.2. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा EMV that is expected monetary value A1 is equal to, तो ये हो जाएगा 25 into 0.3, फिर आ जाएगा प्लस 400 into 0.5 प्लस 650 into 0.2. This is equal to, सब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इट्स 25 into 0.3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 प्लस 400 into 0.5 ये हो जाएगा 200 प्लस 650 into 0.2 ये हो जाएगा 130. सो मैं ऐसा बोलूंगा 7.5 प्लस 200 प्लस 130, तो ये हो जाएगा 337.5. सो ये हो गया मेरा EMV फॉर A1. वैसे ही मुझे ढूंढना है EMV A2. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अभी -10 into 0.3 प्लस 440 into 0.5 प्लस 740 into 0.2. सो -10 into 0.3 किया तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 440 into 0.5 किया तो ये 220 हो जाएगा, प्लस मैं ऐसा बोलूंगा 740 into 0.2 किया ये हो जाएगा 148. सो मैं ऐसा बोलूंगा 148 प्लस 220 -3, सो ये हो जाएगा 365. नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा EMV A3 इज इक्वल टू, अब इधर वैल्यूज क्या आएंगे तो मैं बोलूंगा -125 into 0.3 आ जाएगा
प्लस 500 इंटू 0.5 आ जाएगा प्लस 750 इंटू 0.2 आ जाएगा. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज 125 इंटू 0.3 बट माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस 37.5 आ रहा है प्लस, तो मैं बोलूंगा 500 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 250 प्लस, अब मैं बोलूंगा 750 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 150. सो यहाँ पे 150 प्लस 250 बोलूंगा, सो 150 प्लस 250 हो गया माइनस 37.5 लिख दिया, सो ये हो जाएगा 362.5. सो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कैलकुलेट एंड टेबुलेट द ईएमवी टू डिसाइड द ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन. सो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट कर दिया. नाउ उन लोगों ने बोला है टू डिसाइड द ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा. सो देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन is A2 with value equal to 365. With this question is done. We make a note of this question. We start with the next question, that is question number 11. For the following conditional payoff table, select best decision using EMV and EOL criteria. So first over here I'll write it is question number 11. उसके बाद यहाँ पे दिया गया है it is S1, S2, S3. यहाँ पे दिया गया है it is A1, A2, A3. एंड यहाँ पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी. सो वैल्यूज आर एज फॉलोस. ये है 80, 60, 100. उसके बाद है 40, 0, 50 एंड उसके बाद है 100, -20, 70. करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 0.3, 0.2 एंड देन इट इज 0.5. सो यहाँ पे I'll say we need to first find EMV. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं EMV का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा EMV फॉर 1. सो विल राइट इट एज व्हाट, EMV फॉर A1. ये लिखा तो ये हो जाएगा एज व्हाट, 80 इंटू 0.3 हो जाएगा प्लस 60 इंटू 0.2 हो जाएगा प्लस 100 इंटू 0.5 हो जाएगा. सो इसको कैलकुलेट किया, ये 24 आ जाएगा प्लस ये 12 आ जाएगा प्लस ये 50 आ जाएगा. अच्छा ये सबको ऐड किया, V से 86 हो जाएगा और ये हो जाएगा 86. अब नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट इज EMV A2 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 40 इंटू ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.5. अच्छा सो दिस वैल्यू इज 12, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 37. फिर आ जाएगा यहाँ पे EMV A3 एंड ये हो जाएगा 100 इंटू 0.3 प्लस ब्रैकेट -20 इंटू 0.2 प्लस ब्रैकेट 70 इंटू 0.5. सो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -4 प्लस 35. सो दिस कम्स आउट टू व्हाट, 61. अच्छा अब ये तीनों EMV मिल गए एंड EMV का रूल होता है दैट इज वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू. सो यहाँ पे देयरफॉर द बेस्ट
decision is to choose A1 with EMV equal to 86 क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज EOL क्राइटेरिया बोला है, एंड EOL का मतलब होता है इट इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। सो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, इसके लिए मैं बोलूंगा वी नीड टू फर्स्ट प्रिपेयर द रिग्रेट टेबल। सो यहां पे रिग्रेट टेबल ढूंढते हैं, तो इधर मैं लिखता हूं रिग्रेट टेबल, एंड जैसे ही ये वैल्यूज लिखे इधर आ जाएगा S1 S2 S3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा A1 A2 A3। अब याद रखो जब रिग्रेट टेबल से हम वैल्यू ढूंढेंगे, सो ये जो वैल्यूज होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये S1 है, ये S1 में से हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। सो हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम दिस S1 इज 100। सो 100 अगर हाईएस्ट वैल्यू है, सो 100 में से सब वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद इधर लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा एज व्हाट। अच्छा, इस केस में पहले देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो 60 है। सो 60 में से हर एक को माइनस करेंगे, तो ये 60 माइनस 60 किया तो ये 0 हो जाएगा, 60 माइनस 0 किया तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस ऑफ माइनस 20 किया तो ये 60 प्लस 20 तो ये 80 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये हो जाएगा एज व्हाट 50, ये हो जाएगा एज व्हाट 0 एंड ये हो जाएगा एज व्हाट, सॉरी 100 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो 100 माइनस 100 हो जाएगा, 100 माइनस 50 तो ये 50 हो जाएगा, एंड 100 माइनस 70 तो ये 30 हो जाएगा। सो दिस आर माय वैल्यूज, एंड ये जो है ये बन गया मेरा रिग्रेट टेबल। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस रिग्रेट टेबल एंड दोस प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज वी फाइंड EOL के वैल्यूज, जिसको बोला जाएगा एज व्हाट एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। सो यहाँ पे मेरे पास जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज है दैट आर एज फॉलोज। तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज, अभी ये देखो ये A1 A2 A3 ऐसा दिया है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे EOL फॉर A1 इज इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा इट इज 20 हो जाएगा इंटू 0.3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0 इंटू 0. अच्छा, उस टाइम पे सेकेंड वाली कंडीशन का प्रोबेबिलिटी है 0.2 प्लस 0 इंटू ये हो जाएगा 0.5। सो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 6। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे EOL ऑफ A2 इज इक्वल टू, तो अब क्या आएगा 60 इंटू 0.3 प्लस 60 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.5। सो ये वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस 12 प्लस 25 30 और ये हो जाएगा 55। फिर आ जाएगा यहाँ पे EOL ऑफ A3, एंड EOL ऑफ A3 देखा तो यहाँ पे A3 के लिए कंडीशन हो जाएगा एस 0 इंटू 0.3, फिर आ जाएगा 80 इंटू 0.2 एंड फिर आ जाएगा एस 30 इंटू 0.5। सो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0, ये जो वैल्यू है वो 16 हो गया और इसका आंसर जो है वो 15 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 31। सो ये 6 हो गया, ये 55 हो गया और ये 31 हो गया। अब EOL मतलब एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, एंड इसका जो क्राइटेरिया होता है दैट इज वी नीड टू फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर द बेस्ट डिसीजन इज टू चूज, क्या लिखूंगा यहाँ पे A1 with EOL is equal to 6. With this question is done. We make a note of this question. We start with the next question, that is question number 12.
फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल चूज बेस्ट डिसीजन यूजिंग EMV एंड EOL क्राइटेरिया। S1 S2 S3 दिया है, so यहाँ पे आई राइट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 12, इधर S1 S2 S3 दिया है, ओवर हियर इट इज A1 A2 A3 A4 दिया है, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज भी दी है, सो आई राइट ओवर हियर एज प्रोबेबिलिटी। अब S1 के वैल्यूज जो है उसमें A1 की जगह पे 50 है, उसके बाद S2 का A1 की जगह पे इट इज 70 है, उसके बाद S3 के उसमें A1 का वैल्यू 100। सो द वैल्यूज आर एज फॉलोस, ये हो जाएगा 30, उसके बाद 50 20, नेक्स्ट 120 100 130, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 80 110 एंड 60 है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू है 0.3 0.5 0.2। अब EMV के वैल्यूज चाहिए, सो यहां पे मैं लिखूंगा EMV फॉर यहां पे आ जाएगा एज व्हाट A1। सो EMV मतलब होता है एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, सो इसमें मैं इसको ऐसा बोलूंगा, दिस बिकम्स 50 इंटू 0.3 हो जाता है, प्लस 70 इंटू 0.5 हो जाता है, प्लस 100 इंटू 0.2 हो जाता है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 20, सब मिलके ये हो जाएगा एज व्हाट 70। ये हो गया मेरा वैल्यू फॉर व्हाट A1। ऐसे ही मैं ढूंढूंगा मेरा वैल्यू फॉर व्हाट A2, तो EMV और इधर लिखता हूं A2, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा इट इज 30 इंटू 0.3 प्लस ये हो जाएगा 50 इंटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 0.2। सो इसको कैलकुलेट किया, ये आ जाएगा एज 9, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट किया, ये हो जाएगा 25 प्लस ये वैल्यू कैलकुलेट किया, ये हो जाएगा एज व्हाट 4। सो ये सबको ऐड किया, वी गेट द आंसर एज व्हाट 38। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है EMV A3। जब ये लिखता हूं व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, तो मैं बोलूंगा इट इज 120 इंटू 0.3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5 प्लस 130 इंटू 0.2। सो इसको कैलकुलेट किया, वी गेट इट एज 36 प्लस ये हो जाएगा एज 50 एंड ये हो जाएगा एज व्हाट 26। सो ये सबको अगर ऐड किया, सो 36 प्लस 26 करेंगे, 36 प्लस 26 प्लस 50 किया, सो ये हो जाएगा 112। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एज EMV A4, ये हो जाएगा 80 इंटू 0.3 प्लस ये हो जाएगा 110 इंटू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 60 इंटू 0.2। दिस विल गिव यू द वैल्यू एज 24, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 12। ये सबको ऐड किया तो 9, ये 11, 1 कैरी 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये सारे EMVs कैलकुलेट हो गए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा देयरफॉर द बेस्ट डिसीजन is to choose A3 बोलूंगा with EMV is equal to 112। ठीक है, with this the first part of the question is done, so we make a note of this part। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है टू कैलकुलेट EOL, बट EOL कैलकुलेट करने के लिए आई शुड फर्स्ट हैव रिग्रेड टेबल। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिग्रेड टेबल ड्रॉ करता हूँ, तो रिग्रेड टेबल ड्रॉ करने के लिए इधर आ जाएगा S1 S2 S3,
इधर आ जाएगा A1, A2, A3, A4। नाउ रिग्रेड टेबल ड्रॉ करने के लिए रूल है, तो मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे S1 में जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, सो S1 में हाईएस्ट वैल्यूज हुआ 120, सो 120 में से हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो 120 माइनस 50 किया तो ये हो जाएगा 70, 120 माइनस 30 किया तो ये हो जाएगा 90, 120 माइनस 120 किया ये हो जाएगा 0, एंड 120 माइनस 80 किया तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू इन S2 इज 110, 110 में से 70 गया तो ये हो जाएगा 40, 110 में से 50 गया तो ये हो जाएगा 60, 110 में से 100 गया तो ये हो जाएगा 10, एंड ये हो जाएगा इज व्हाट 0, क्योंकि 110 माइनस 110 क्या देगा 0। अच्छा, इसमें द हाईएस्ट वैल्यू इज 130, अब 130 में से हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 130 माइनस 100, 130 माइनस 20, 130 माइनस 130 तो ये 0, 130 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 70। सो अगर मैं इतने वैल्यूज देखता हूं तो ये वैल्यूज आ गए, एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज एंड जो प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं वो है 0.3, 0.5 एंड 0.2। आई नीड टू कैलकुलेट EOL के वैल्यूज फॉर ईच ऑफ दोस केस, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे EOL फॉर A1, एंड कैन आई से EOL फॉर A1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, सो मैं बोलूंगा इट इज 70 इंटू 0.3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 0.5 हो जाएगा, प्लस 30 इंटू 0.2 हो जाएगा। सो इसको कैलकुलेट किया, वी से इट इज 21 प्लस 20 प्लस 6, और ये मिल के हो जाएगा एज 47। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वैल्यू आ गया है व्हाट 47 ऑफ EOL। अब वैसे ही मैं ढूंढूंगा EOL फॉर A2, एंड मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू, सो ये क्या आएगा अभी, इट इज 90 आ जाएगा इंटू 0.3 प्लस 60 इंटू क्या आएगा 0.5 प्लस 110 इंटू क्या आएगा 0.2, सो दिस कम्स आउट टू 27, ये हो जाएगा 30 एंड ये हो जाएगा 22। सो ये सबको ऐड किया तो ये हो गया 9 एंड ये हो जाएगा 7, सो दिस बिकम्स 79। अब है मेरा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ EOL, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं EOL A3 इज इक्वल टू, सो व्हाट इज दिस वैल्यू, तो मैं बोलूंगा इट इज 0 इंटू 0.3 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 0.5 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0.2 हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, मेरा आंसर हो जाएगा एज व्हाट 5। अब आएगा यहाँ पे EOL फॉर A4, एंड इधर मैं लिखूंगा दिस बिकम्स 40 इंटू 0.3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू 0.5 प्लस 70 इंटू 0.2। सो इसको कैलकुलेट किया, वी से ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 26। सो ये वैल्यू 26 है, एंड नाउ आफ्टर दिस सिंस EOL ऑफ A1, A2, A3, A4 सब निकल गए, अब मुझे EOL का मतलब होता है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। सो इसमें आई नीड टू फाइंड व्हाट द मिनिमम वैल्यू, सो मैं लिखूंगा देयरफॉर द बेस्ट डिसीजन is to choose A3 with EOL is equal to 5. With this question is also done, and we also end this session over here. But before starting with the new section, please revise whatever concept we have done in this session. Thank you.